Hello students. Today we are going to understand question tags in English. Now see, I hope that you have the basic knowledge about the tenses because in the earlier classes you have studied the tenses also, like simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous, past continuous, future continuous and all other tenses also. You must be convenient with the helping verbs of the tenses. After this we will take the revision of tenses also, so it will take little bit time, but as we know that we have the unit test also, so for the sake of that we are going to start the question tags in English as well as active voice and passive voice, and then some important prepositions we are going to understand today. I hope you will watch it very carefully and you can take the screenshot, and you can also write down it in your notebook, so it will make very easy for you to understand the question tag, active voice and passive voice. So here we are going to start the question tags. Now see, we know that different tenses are there, and according to that different helping verbs we have to use, and for making question tags, using question tags we should know the helping verbs of the particular tense. So here the first tense, that is present be, मीन्स प्रेजेंट टेंस ही है, बट ये टू बी फॉर्म का प्रेजेंट टेंस है जिसमें हम यूज़ करते हैं एम इज़ आर का present tense, but using am is are. Now see, first sentence has been given here, she is American, and the question tag is isn't she. Now remember always one thing, that if a sentence is given in a positive way, अगर सेंटेंस पॉजिटिव दिया गया है, then we have to add the tag negative tag we have to add. Then if a sentence is given in negative form, then we have to add the positive question tag. Always keep this thing in your mind. Many students are there, they don't remember these things and they make a simple and silly mistakes. So because of that only they do not get the marks whatever they expect. Now see, the first sentence, she is American, it is a positive sentence, and the tag which is given here, that isn't she. नाउ सी अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन टैग के, तो पूरा सेंटेंस लिखिए। आंसर शीट में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस कैसे लिखना है, देखिए, शी इज़ अमेरिकन कॉमा इजंट शी एंड क्वेश्चन मार्क। मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे फॉरगेट टू ऐड द क्वेश्चन मार्क, and without question mark it is not going to consider as a question tag. Then the negative sentence, she isn't American, comma is she. अभी देखिए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव टैग लगा है। सिंपल प्रेजेंट, यू स्टडी इंग्लिश, देखिए यहाँ पर स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड वी नो दैट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज डू एंड डज. सो डोंट यू स्टडी इंग्लिश कॉमा डोंट यू डोंट स्टडी इंग्लिश कॉमा डू यू एंड क्वेश्चन मार्क. सिंपल पास्ट टेंस बट टू बी वाला, और टू बी में कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, दैट इज वॉज एंड वर. यू वर एट होम, वरंट यू वरंट एट होम कॉमा वर यू एंड क्वेश्चन मार्क. अभी यहाँ पर हम एक और सेंटेंस लेते हैं जो कि सिंपल ओरल में हम लेते हैं. ही वॉज बिजी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. ही वॉज बिजी, तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसा होगा, ही वॉज बिजी कॉमा वॉजंट ही, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, नेगेटिव. और नेगेटिव सेंटेंस है जैसे कि ही वॉज नॉट बिजी, तो कॉमा देकर हम लिखेंगे वहाँ पर वॉजंट ही. देन पास्ट कंटिन्यूअस, टॉम, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस है यहाँ पर डायरेक्टली, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस लेते हैं डायरेक्टली. टॉम वॉज वॉचिंग टीवी, वॉजंट ही. टॉम वॉजंट वॉचिंग टीवी, वॉज ही. इस तरह से पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. हम सिंपल पास्ट टेंस का V2 का भी एक ओरली एग्जांपल ले लेते हैं. आगे की स्लाइड में आपको सिंपल पास्ट भी मिलेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. जैसे कि सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस हम लेते हैं, यू स्टडीड एट होम. यू स्टडीड एट होम,
डिडंट यू, पॉजिटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. यू डिडंट स्टडी एट होम, अदरवाइज यू डिड नॉट स्टडी एट होम. डिड यू, तो नेगेटिव के लिए कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यहाँ पर आ जाएगा. देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, we know that for present perfect tense the helping verb is have and has. He has written 5 letters. यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, he has written 5 letters, plus we have to put a comma, then we have to add a question tag, hasn't he. And now negative sentence, he hasn't written 5 letters, comma, has he. Then past perfect, यू हैड लंच. अभी देखिए यहाँ पर हैड का यूज़ एज अ वर्ब बोल के और एज अ हेल्पिंग वर्ब बोल के भी किया है, तो अभी ये सेंटेंस करेक्ट है. यू हैड लंच, हैडंट यू, कॉमा देने के बाद में हैडंट यू. यू हैडंट हैड लंच, हैड यू. नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. देन विल, अगर विल का है तो मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है, किस तरह से होगा ये देखिए. विल के बदले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर नेगेटिव में वोंट का यूज़ करते हैं हम. देखिए, ही विल रीड दिस बुक, ही विल रीड दिस बुक, देन कॉमा, देन वोंट ही, देन ही वोंट रीड दिस बुक, विल ही. इस तरह से आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पर लगाना होगा. मॉडल वर्ब, ही कैन रीड दिस बुक, कांट ही, देन ही कांट रीड दिस बुक, कैन ही. इस तरह से आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का भी आप क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चन टैग लगा सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अनदर स्लाइड. नाउ सी हियर second slide. It is for your better understanding, so that will be very helpful for you. Now see again, some sentences are given that we are going to understand. Simple present, she reads a book. Now see here, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ही, शी, इट, ये जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए हम वर्ब को यस यस लगाते हैं, तो वही से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह का कौन सा टेंस है. शी रीड्स अ बुक, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट कॉमा आफ्टर दैट वी हैव टू गिव, एंड डजंट शी, that positive will take negative question tag, and the negative sentence will take the positive question tag. Then another sentence, she doesn't read books, she doesn't read books, so does she, तो ये हो गया यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग. प्रेजेंट में का जो बी फॉर्म है वो अभी उसे हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे, बी फॉर्म तो नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा गलत दिया है यहाँ पर. तो अभी बी फॉर्म मतलब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, एज अ मेन वर्ब नहीं. ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट, इजंट ही इजंट प्लेइंग अ क्रिकेट, इज़ ही. मतलब वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है और ये यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल रहा है. तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव के लिए लगेगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. देन पास्ट सिंपल, शी प्लेड क्रिकेट, डिडंट शी डिडंट प्लेड क्रिकेट. यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि डिडंट के बाद में हमेशा V1 का यूज़ होता है. शी डिडंट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आना चाहिए डिड शी. ये प्लीज़ इतना यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर गलत भी दिए होते हैं, हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो. तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लेड है ये रॉन्ग है, और वैसे तो ये क्रिकेट के लिए भी नहीं चाहिए, और क्रिकेट नहीं बोलते हैं हम, ये भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. एंड देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वॉज रीडिंग अ बुक. जैसे कि देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चाहिए था. हियर वी शुड हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर होना चाहिए था. ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रहा था, तो बुक पढ़ रहा था. वॉजंट ही, एंड ही वॉजंट रीडिंग अ बुक, वॉज ही. देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज़ रिटन एन ईमेल. हैज़ का यूज़ किया गया है, तो क्वेश्चन टैग में हम यूज़ करेंगे हैज़ंट ही. तो यहाँ पर उन्होंने ईमेल के बाद में फुल स्टॉप दिया है, तो वो फुल स्टॉप नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉमा चाहिए. ही हैज़ रिटन एन ईमेल, comma, hasn't he, then he hasn't written an email, has he.
तो देखिए ऐसे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, जो कि जिन्होंने ये बनाया होता है उनकी तो कुछ में कुछ गलती नहीं होती है, बट इट मस्ट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक बाय द टाइपराइटर। हाँ, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड रिटन एन ईमेल, कॉमा hadn't he, and he hadn't written an email had he, comma after comma it is mentioned here had he. Then simple future tense, I will go to the market, won't I, and I won't go to the market, will I. Then modal verbs can का दिया है यहाँ पर, he can run a mile, can't he, comma देके can't he, and he can't run a mile, can he. सो इस तरह से आपको पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करना है। देन अगेन सम सेंटेंसेस आर गिवन हियर, क्वेश्चन टैग और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए ये इमेज भी बहुत अच्छी है। सो सी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। अब ये क्या है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन का, तो ये हम किस लिए पूछते हैं, तो कंफर्म करने के लिए कि यस और नो में कंफर्मेशन। नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग एंड पॉजिटिव क्वेश्चन प्लस अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, इस तरह से आपको देखना है यहाँ पर। यू आरंट अ टीचर, आर यू, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ही इजंट क्रेजी, इज ही वॉजंट रिलैक्स्ड, वॉज ही, अभी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे वरंट लेट, वर दे, यू डोंट स्पीक फ्रेंच, डू यू, यू डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, डिड यू, यू हैवंट बीन हियर ऑल वीक, हैव यू, यू हैडंट डन इट बिफोर देन, हैड यू। इस तरह से आपको क्या करना है, उसे देख लेना है एक बार। Statements using bravely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing, and seldom are treated as negative statements. अभी जैसे अगर सेंटेंस में यूज़ किया गया है बेयरली, हार्डली, नाइदर, नो, नोबडी, नन, नथिंग और एंड सेल्डम, अभी ये जो सेंटेंस में अगर यूज़ किए जाते हैं तो उस सेंटेंस को हमें नेगेटिव कंसिडर करना है, तो उसका हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करना है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, नो बडी वेंट टू दिस मीटिंग, ऑलरेडी ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव में है क्योंकि नो बडी है, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव में करेंगे, क्योंकि वेंट दिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पर पास्ट टेंस, तो हमने लिखा यहाँ पर डिड दे, यहाँ पर दिया है डिड दे। नथिंग इज़ रेडी, अभी नथिंग कैसा है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर फिर से दिया है नथिंग इज़ रेडी, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग किया हमने इज इट, इज इट। Now the next we are going to study, that is passive voice, active and passive voice. See, always keep one thing in your mind, that active voice and passive voice, in that you should have the basic knowledge of the tenses. We know that in English there are 8 parts of speech. In the same manner you have to keep one thing in your mind, that is in English language there are 8 tenses which can be converted into passive voice. These are given here. Along with that some modal verbs are there that can be converted into passive voice. I hope you are also going to take the screenshot of this and you can understand it in a better way, so you can write down it in your notebook also. It will be very helpful for you. नाउ सी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है एग्जैक्टली। तो जब हम सेंटेंस का पैसिव वॉइस करते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट करते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ सी प्रेजेंट सिंपल, रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स। अभी रिपोर्टर्स क्या करते हैं, तो न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते हैं, क्या करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर हमें दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, तो पैसिव वॉइस करना है। तो अभी देखिए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स बोला गया है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने वो सब्जेक्ट के हिसाब से, देखो पैसिव में क्या लिखा है, न्यूज़ रिपोर्ट्स आर
तो न्यूज़ रिपोर्ट्स आर, क्योंकि आर क्यों है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स ज़्यादा है, एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स है इसलिए आर। और रिटन बाय रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स मतलब क्या है, तो एक से ज़्यादा है बट फिर भी यहाँ पर वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही आएगा हमेशा के लिए। और बाय रिटन रिपोर्टर अदरवाइज रिपोर्टर्स विल बी द सेम, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिपोर्टर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन चुका है, न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्या बन गया, वो सब्जेक्ट हो गया। So we can consider that simple present tense subject plus V1 plus object। अगर ये स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो वो भी ऊपर लिख सकते हो आप, नीचे सब्जेक्ट लिख सकते हो। एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय एंड देन द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऊपर यस लिख सकते हो, नीचे ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। Now the next tense which is given here for us, that is present continuous tense। Michael is breaking a brownie। अभी माइकल क्या कर रहा है, तो ब्राउनी बेक कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो वो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, वो तो क्लियर है। तो उसके बाद में एम इज आर प्लस बीइंग, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, कंटिन्यूस में है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर प्लस बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, तो वो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। इन शॉर्ट यू कैन राइट डाउन एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। दैट अ ब्राउनी इज बीइंग बेक्ड बाय माइकल। अभी ब्राउनी कैसा है, यहाँ पर एक लिया है सिंगल, अ ब्राउनी इज बीइंग। अगर वहाँ पर ब्राउनीज होता था तो ब्राउनीज आर बीइंग बेक्ड बाय माइकल, इस तरह से वो सेंटेंस बनता था। सिंपल पास्ट टेंस, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। अभी कंपनी ने क्या किया, तो नए वर्कर्स को हायर किया लास्ट ईयर को। तो अभी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द कंपनी, वर्कर्स क्या है, इधर देखिए न्यू वर्कर्स, वर्कर्स बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो देखिए न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर वर हायर्ड बाय द कंपनी, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर। वो जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी का आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है तो एज इट इज़ आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो सेंस बनाता है क्या। अगर सेंस बन रहा है प्रॉपरली, सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से आ रहा है, सो यू कैन यूज़ दैट, सो इट विल बी वेरी गुड। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अभी देखिए फिर से कंटिन्यूस टेंस आ गया, मतलब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, तो बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, बीइंग का। The salesman was helping the customer when the thief came into the store। अभी the salesman was helping the customer when the thief came into the store। देखिए the customer was being helped, किसको हेल्प मिली अल्टीमेटली, तो कस्टमर को। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो कस्टमर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। वेरी नाइस। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाउ सी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर का होता है पैसिव वॉइस, डायरेक्टली यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है वो हम आगे देखेंगे। दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय देम, वहाँ पर बाय देम दिया नहीं है बट वी कैन ऐड इट, बाय देम। द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय देम। Then next one, that is past perfect tense, he had delivered the letters, he had delivered the letters, the letters had been delivered by him, the letters had been delivered by him। अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है।
उसमें हम क्या करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बीन का। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में हम किसका यूज़ करते थे, वॉज और वर का सिंपल पास्ट में, और उसके बाद में इसमें प्रेजेंट में एम इज़ आर का। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर देंगे, बीन का यूज़ करते हैं। किसका, बीन का। तो अभी देखिए सिंपल फ्यूचर, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन मेक इट, यू कैन ट्राई इट। यस, हाँ, यस, गुड गुड, वेल ट्राई। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी। यस। नाउ सी इन्फिनिटिव। अभी जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव दिया होता है तो वो कौन सा होता है, पहले हमें देख लेना है। अभी देखिए उसको कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटिव दिया है, शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर। शी हैज़ टू डिलीवर अ लेटर। यहाँ पर शी हैज़ टू डिलीवर, जो ये है टू डिलीवर, वो हो गया यहाँ पर इन्फिनिटिव। तो देखिए कैसे किया गया है, लेटर्स का ऑब्जेक्ट है ये अपना, द लेटर्स हैव, क्योंकि यहाँ पर हैज़ दिया है शी के लिए, तो लेटर्स ज़्यादा हो गया, इसलिए आएगा द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। टू बी डिलीवर्ड शी बाय हर, टू बी डिलीवर्ड बाय हर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू के बाद में बी लग जाएगा और जो डिलीवर है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड बाय हर। Then one more model auxiliary example has been given here, that is of must. She must deliver the letters. She must deliver the letter. यहाँ पर हमें be का यूज़ करना पड़ेगा। The letters must be delivered by her. Letters उसके द्वारा ही delivered होने चाहिए, by her, ऐसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। I hope you have got little bit ideas about the active voice and the passive voice. You can do it in your exam, in your unit test in a better way. That will be very helpful for you. If you make the note of this, definitely it will be very good. So I request everyone, so please take the screenshot and write down it in your notebook. Then the next one we are going to see here. Again one more, you can see tense, active voice and passive voice that he has been given here. You can see and you can check it. Reporters writes news reports. News reports are being news reports are written by reporters. Michael is baking brownie. ये तो अपना हो गया था, ये इमेज हमने देख ली थी, ये सेम है, नो प्रॉब्लम, इट इज़ द सेम वन. One more, another one. Now see, you can take the this screenshot, it will be very good. Tell us what a person or thing does. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ये हमें बताता है, टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब वो इंसान क्या करता है, वो चीज़ क्या करती है, हमें यहाँ पर बताता है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन से एक्शन परफॉर्म करता है, ये हमें यहाँ पर बताता है। देखिए, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका एक्टिव का जनरली स्ट्रक्चर रहेगा। और पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बट सभी पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अभी पैसिव वॉइस में एग्जैक्टली क्या होता है, टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करता है, बीइंग एक्टेड अपॉन, मतलब उसके ऊपर एक्टेड अपॉन करता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम जरूरी है, राम ने, किसने मारा, राम ने। और पैसिव वॉइस क्या बोलता है, तो रावण को राम ने मारा, रावण को राम ने मारा। यहाँ पर ज़रूरी क्या है, तो कौन मरा, मतलब रावण मरा, किसके द्वारा मारा गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अहमियत दी गई है ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, Anna painted the house. The teacher always answers the students' question. Ali posted the video online. And here the example of passive voice. The house was painted by Anna. The students' questions are answered by the teacher.
द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। अगेन सम सेंटेंसेस आर बीन गिवन हियर। ओके, जस्ट again some sentences are given here, you can check it। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस का दिया गया है और उसमें सारे सेंटेंसेस मिक्स हैं, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, तो ये भी आप अच्छे से समझ सकते हो। आई होप यू कैन डू इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए एक नेगेटिव एक क्वेश्चन का मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्हाट डू यू वांट। अभी यहाँ पर व्हाट डू यू वांट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है अपना, यू है, तो ऑब्वियसली तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा। अभी डू है तो हमें पता है कि क्या यूज़ करना है, एम इज़ आर। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, वांट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा तुम्हें क्या चाहिए था, मतलब इस तरह से यहाँ पर क्या चाहिए ऐसे पूछा गया है। तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। Now again one more slide has been given here for your better understanding, the passive voice। Only 3 tenses are given here, you can take it। Now some more examples are given here। मॉडल परफेक्ट, अभी शुड हैव रिटन, मस्ट राइट, ये तो मॉडल सिंपल है। मॉडल परफेक्ट, एमा शुड हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय एमा, मतलब जो एमा है उसके द्वारा वो लेटर लिखा जाना चाहिए। शुड हैव बीन रिटन, लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो परफेक्ट में है। मॉडल परफेक्ट, शुड हैव बीन, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार उसे अच्छे से देख लीजिए। I hope students you have understood the examples of passive voice। Again one more slide is there for you। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी देखिए कौन से 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2-3 एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो आप समझ सकते हो। अभी कौन से टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो सबसे पहला सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। जिस सेंटेंस में विल बी दिया है ऑलरेडी उसका पैसिव वॉइस यहाँ पर नहीं होगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। कौन से 4 टेंसेस, एक तो सबसे पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ सी सिंपल फ्यूचर, आई विल रीड एन इंटरेस्टिंग नावल। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, नावल, तो एन इंटरेस्टिंग नावल विल बी रीड। अभी रीड इसलिए क्योंकि वो रीड तीनों फॉर्म में कैसा है, सेम ही है। रीड बाय मी ऐसे आप वहाँ पर लगा सकते हो। फ्यूचर बी गोइंग टू, अगर ऐसे गोइंग टू है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है और बताया जाता है कि फ्यूचर इंडिकेट करता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई दिस संडे, मैं इस संडे को मुंबई जा रहा हूँ, तो ये क्या होता है, फ्यूचर का इंडिकेट करता है। आई एम गोइंग टू रीड एन इंटरेस्टिंग नावल, एन इंटरेस्टिंग नावल इज़ गोइंग टू बी रीड बाई मी। मॉडल्स, आई शुड रीड एन इंटरेस्टिंग नावल, मैंने क्या करना चाहिए, इंटरेस्टिंग नावल पढ़ना चाहिए। एन इंटरेस्टिंग नावल शुड बी रीड बाई मी। And then model perfect, I should have read an interesting novel, an interesting novel should have been read by me। Then now it is time to take the revision of prepositions. It is time to take the revision of prepositions. Some prepositions are very important that we have to understand here। Now see, mostly prepositional phrase, at home, in the house, in and on the corner, ये क्या है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, तो इसका भी यूज़ अच्छे से करना है, देखना है। अभी एट का यूज़ कहाँ पर होता है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए और फेस्टिवल्स के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो जनरली टाइम, कॉलेज, प्लेसेस के लिए आपको एट का यूज़ कर सकते हो। इन,
इन द हाउस मतलब एक सरफेस के अंदर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन अ कार मतलब कार के अंदर। ऑन अ कार मतलब कार के ऊपर। एट द कार मतलब कार के पास। इस तरह से आप उसे समझ सकते हो। अगेन प्रीपोजिशन लिस्ट हैज़ बीन गिवन हियर, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट इज़ ईजी। हाँ, अभी ऑन के बारे में, इन के बारे में और एट के बारे में और अंडर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा आप लोगों को। Prepositions of place are used to show the preposition's position or location of one thing in the relation to another. अभी ऑन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? डेट के लिए, डे के लिए, डेट के लिए और डे के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन 25th ऑफ जनवरी, ऑन 19th ऑफ अगस्त। ये डेट जब भी आएगी तो क्या आएगा वहाँ पर? ऑन आएगा। इन उसी तरह से कैसे आएगा? ईयर के लिए और मंथ के लिए इन आता है। इन जनवरी, इन फरवरी, इन जुलाई, इन 2011, इन 2015, इन 2021, इन 2030। इस तरह से क्या आएगा? इन आएगा ईयर्स के लिए। अभी एट द रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप, मतलब ये क्या बताता है? तो पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है कि कौन से प्लेस पर है। देन अंडर, अंडर मतलब क्या? कम डिस्टेंस, अंडर द ट्री, अंडर द ब्रिज, अंडर द रूफ, अंडर द रूफ, अंडर द वाटर, अंडर द सी, अंडर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड जो प्लेस बोलते हैं ना हम उसे अंडरग्राउंड। बट अबव जो है वो कैसे होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द सिटी, द हेलीकॉप्टर, द ईगल कैन फ्लाई अबाउ द क्लाउड। इस तरह से आपको इस प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। नाउ अगेन सम एग्जांपल्स ऑफ prepositional phrases are given here, you just go through it. Now if you have any kind of query regarding this, any kind of question regarding this, you can feel free to ask me. You can call me, you can message me, that would be better. If you need more explanation on this, definitely please drop a message and please let me know, so I can make the another video to clear your doubts. I hope you liked it, you enjoy it, and if something is there, definitely please drop a message. You can like the video also if you feel that it is quite better for you, so please do it. Thank you so much everyone.